Good morning. I hope you are doing great. In the last class, we discussed about some evidences, direct evidences of evolution. Today, we will discuss about indirect evidences. Then, we will discuss about the pathways of evolution, that how evolution takes place. And at last, we will discuss about the formation of species, a process called as speciation. So let's start with indirect evidences. Now, what is the main difference between direct and indirect evidences? Direct evidences means we have some records and we have some proofs which explains that yes, the evolution has taken place. Okay, like we have fossil records, ठीक है, study of fossil called paleontology. तो दैट सजेस्ट कि हमारी जो सॉइल है या रॉक्स हैं उसमें क्या होता है, एनिमल्स या प्लांट्स के आपको डेड रिमेन्स मिलते हैं, राइट। तो वो आपका एक डायरेक्ट प्रूफ है, आपको इन हैंड आपके पास एक प्रूफ है विच सजेस्ट कि धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स में चेंज हुआ और उनसे फिर न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते गए. सो दोज आर दी डायरेक्ट एविडेंसेस. देन वी डिस्कस्ड अबाउट कार्बन डेटिंग कि हम न्यूमेरिकल एज उससे पता लगा सकते हैं ऑर्गेनिजम्स की, फॉसिल्स की, ठीक है. कार्बन डिके होती है, उसकी हाफ लाइफ होती है 5730 ईयर्स. तो अगर उसकी हाफ लाइफ हो चुकी है इट मीन्स कि जो ऑर्गेनिज्म है वो, जो भी आपका फॉसिल है, दैट इज़ 5730 ईयर्स ओल्ड. देन वी डिस्कस्ड अबाउट बायोजियोग्राफी. तो ये सारे आपके डायरेक्ट एविडेंसेस हैं. इनडायरेक्ट एविडेंसेस में यू विल स्टडी अबाउट द एनाटमी. Anatomy refers to the study of internal structures of the plants or animals. Okay, like we will discuss about the structure of bones or structure of fruits. Okay, so जो भी internal structure होगा किसी भी plant या animal का, study of those internal structures is called as anatomy. So in indirect evidences you have a comparative anatomy, in which you will compare the internal structures of different organisms, which includes homologous structures, analogous structures. Then another indirect evidence is the embryology, that is study of embryos. Then we have vestigial organs, physiology, biochemical evidences, and some genetic evidences. So let's start with the indirect evidences. Okay, so first we have embryology. I already told you what is embryology, that is the study of embryos. Now there are evidences based on comparative studies of the embryo development. For example, vertebrates will show similar embryos. Okay, the early embryos of fish, rabbit, humans, dog, cats resemble one another so closely that it becomes difficult to distinguish between them. If you look at the picture, like here we have fish, human, then pig is there, hen is there, then tortoise is there. All these animals are vertebrates. Okay, they all belong to one phylum, Vertebrata phylum. Now if you look at the early pictures of their embryos, they are quite similar. You can't easily distinguish कि इनमें से कौन सा एम्ब्रियो जो है वो ह्यूमन का है, कौन सा पिग का है, कौन सा hen का है, राइट. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम. दे आर क्लोजली रिजेंबलिंग ईच अदर. अब इसका क्या मतलब है, इससे हम क्या एविडेंस एक ले सकते हैं. जो आपके इनडायरेक्ट एविडेंसेस होते हैं ना, दे आर हाइपोथेटिकल. डायरेक्ट एविडेंसेस मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्ट एविडेंसेस होते हैं आपके, दे आर बेस्ड ऑन दी प्रूफ्स, जो आपके पास इन हैंड प्रूफ होते हैं, ठीक है, कि हाँ ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्रूफ आपके पास उसके रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं. बट जो इनडायरेक्ट एविडेंसेस होते हैं दे आर बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, ठीक है, कि आपको आप एज्यूम कर लेते हो. तो ये हाइपोथेटिकल होते हैं जो इनडायरेक्ट एविडेंसेस होते हैं. तो इफ़ यू लुक एट दीज एम्ब्रियोज, दे आर resembling each other.
यू वॉन्ट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम वेरी ईजिली, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ये जितने भी एनिमल्स हैं, लाइक आपका फिश है, ह्यूमंस हैं, पिग है, हैन है, टॉर्टॉइज है, दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर्स। ठीक है, मतलब इनका एक कॉमन एंसेस्टर होगा सबका, जिसके कारण इन सब के एम्ब्रियोज जो हैं वो एक दूसरे से रिजेंबल कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। सो इसका मतलब एवोल्यूशन हुई धीरे धीरे, ठीक है, एक एंसेस्टर था इन सब का, उस एंसेस्टर में धीरे 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 एवोल्यूशन होती गई ओवर द टाइम, और उससे डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ बन गई बाद में। सो दिस इज़ योर इनडायरेक्ट एविडेंस, एम्ब्रियोलॉजी। Now we will talk about second evidence, homologous and analogous structures. Then we will discuss about vestigial organs. तो ये homologous, analogous structures, vestigial organs जो हैं ये किसके अंदर आएंगे? एनाटमी में। Okay, actually they are included in anatomical and morphological evidences. Anatomical and morphological evidences. Anatomical refers to the internal structures, ठीक है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स, और मॉर्फोलॉजिकल होते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आई विल गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। एनाटॉमिकल में जैसे हम ह्यूमन हार्ट को स्टडी करते हैं, ठीक है, या उसके जो भी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, बॉडी के इंटरनल सेल्स हैं, उनकी स्टडी को हम बोलेंगे एनाटॉमी। और मॉर्फोलॉजी हम बोलेंगे एक्सटर्नल फीचर्स को, लाइक हाइट कितनी है, वेट कितना है, ठीक है, बॉडी कलर क्या है, आई कलर क्या है, हेयर टेक्सचर, हेयर कलर क्या है। तो जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, दे आर कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, और जो इंटरनल फीचर्स होंगे दे विल बी कॉल्ड एज एनाटॉमिकल फीचर्स, राइट। तो आपके जो होमोलोगस, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हैं, या फिर आपके जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, दे आर इंक्लूडेड इन द मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। So let's start with the homologous structures first. Homologous structures are those which are different in functions, but they have similar basic structure and developmental origin. I'm repeating. Homologous organs में क्या होगा, आप ना HDFC बैंक से याद कर लो। HDFC बैंक है, H stands for homologous, D stands for different, F stands for function. Okay, functions. So homologous organs में क्या होगा, different functions होंगे. So if you compare the structures of different organisms, like forelimbs of the birds, horse, man, cat, dog, तो उनके फंक्शन तो सबके डिफरेंट हैं, बट उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है दैट विल बी सेम, और उनका जो डेवलपमेंटल ओरिजिन है कि मतलब वो कहाँ से बने, उनका जो एंसेस्टर होगा दैट विल बी सेम. सो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स जो हैं they will represent the common ancestors. Like here you can see these are the four limbs of human, cat, whale and bat. अब सबका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है. ह्यूमन के जो फोर लिम्स हैं वो आप राइटिंग के लिए यूज़ करते हो, या किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए, ठीक है, ईटिंग के लिए, तो ह्यूमंस में ये यूज़ है. कैट के फोर लिम्स का डिफरेंट यूज़ है, ठीक है. वेल के जो फोर लिम्स हैं वो स्विमिंग में हेल्प कर रहे हैं. बैट के जो फोर लिम्स हैं वो फ्लाइंग में हेल्प कर रहे हैं. तो फोर लिम्स यहाँ पे जो ह्यूमन, कैट, वेल और बैट के फोर लिम्स हैं सबका फंक्शन डिफरेंट है, बट इफ़ यू लुक एट देयर बेसिक स्ट्रक्चर देन इट इज़ रिजेंबलिंग. ठीक है, अगर आप ह्यूमन्स, कैट्स, वेल और बैट के अगर फोर लिम्स का स्ट्रक्चर देखो
तो ये काफ़ी मैच कर रहा है, इनके जो बोन्स का अरेंजमेंट है वो काफ़ी मैच हो रहा है। यहाँ पे भी आपके पास इनके 5 बोन्स हैं, ठीक है, फिंगर्स में 5 फिंगर्स आर देयर। यहाँ पे कैट में भी 5 होती हैं बट दे आर फ्यूज्ड, ठीक है, हमारे में सेपरेशन होती है, कैट में फ्यूज हो जाती हैं वो। यहाँ पे भी आप देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इनमें जो बोन्स का अरेंजमेंट भी है वो काफ़ी सिमिलर है। अब ये सिमिलर होने का मतलब क्या है कि ये इनका एक कॉमन एंसेस्टर होगा, राइट। एंसेस्टर अगर कॉमन है तो स्ट्रक्चर मिलता जुलता होगा, बट फंक्शन कैसे डिफरेंट हो गया फिर? फंक्शन क्यों डिफरेंट हो गया? बिकॉज दे माइग्रेटेड टू डिफरेंट हैबिटेट्स। वेल पानी में चली गई, ठीक है, तो उसको वहाँ पे स्विम करना था, तो उसने अपने 4 लिम्स को वैसे मॉडिफाई कर लिया, अडेप्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू हैबिटेट। बैट को फ्लाई करना था, राइट, तो उसने अपने आप को वैसे अडेप्ट कर लिया। कैट ह्यूमंस को अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने थे, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लिया, मॉडिफाई कर लिया। सो इट मीन्स कि एक कॉमन एंसेस्टर था जहाँ से ये सारे ऑर्गेनिजम्स बने, बट later on they migrated to different locations, different habitats, and according to the habitat they modified or adapted their organs or structures. So this is a homologous organ example, ठीक है। तो homologous organs में क्या है, फंक्शन जो है वो डिफरेंट होगा, लेकिन उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है और उनका जो ओरिजिन है, एंसेस्टर्स हैं, वो सेम होंगे। नाउ होमोलोगस ऑर्गन जो हैं, इफ़ होमोलोगस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट देन इट विल कन्फर्म 2 थिंग्स, ठीक है। तो होमोलोगस ऑर्गन से हमें एक तो पता चल गया कि कॉमन एंसेस्टर्स हैं। सेकेंड क्लू विच होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर गिविंग अस इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। Now, what is divergent evolution? Same structures have become different in different organisms due to different adaptations, ठीक है। I will repeat again कि जो सेम स्ट्रक्चर है होमोलोगस में, मैंने आपको बताया कि उनका फंक्शन डिफरेंट है बट जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। तो स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन उनके फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो गए। क्यों फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट हो गए? क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में चले गए, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में चले गए, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हैबिटेट उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, चेंज कर लिया। सो दैट इज़ दी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एंड वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज adaptive radiation. Adaptive radiation. तो यहाँ पे ये डायग्राम भी यही डिपिक्ट कर रहा है। ये एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है, ये एक उनका एक सेंटर ऑफ ओरिजिन है जहाँ पे वो स्पीशीज़ की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है, यहाँ जो स्ट्रक्चर बने थे। लेटर ऑन दीज स्पीशीज़ और ऑर्गेनिजम्स माइग्रेटेड टू डिफरेंट लोकेशन। मान लो यहाँ पे बैट चली गई एयर में और वेल चली गई पानी में, तो उसके अकॉर्डिंग बैट जो है उसने अपने 4 लिम्स को फ्लाई करने के लिए यूज़ कर लिया और वेल ने अपने 4 लिम्स को स्विमिंग के लिए यूज़ कर लिया। तो वो डाइवर्ज हो रहे हैं, मतलब एक कॉमन पॉइंट से निकल के दे आर स्प्रेडिंग टू, दे आर डाइवर्जिंग टू डिफरेंट हैबिटेट्स। दैट्स वाई होमोलोगस ऑर्गन्स जो हैं दे विल रिप्रेजेंट दी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। और अडेप्टिव रेडिएशन, अडेप्टिव रेडिएशन का भी यही मतलब है, रेडिएशन मतलब रेडिएट करना, फैलना। तो एक कॉमन पॉइंट से, एक सेंटर ऑफ ओरिजिन से निकल के वो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में स्प्रेड हो गए, रेडिएट हो गए, और वहाँ के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया। सो दैट इज़ कॉल्ड अडेप्टिव रेडिएशन।
एग्जाम्पल लाइक ब्राउन बियर जो हैं दे आर प्रीडोमिनेटली वेजिटेरियन बिकॉज जो ब्राउन बियर हैं दे आर लिविंग इन सच अ एरिया वेयर प्लांट्स आर ईजिली अवेलेबल। ठीक है, उनके पास बहुत सारे हर्ब्स श्रब्स और ग्रासेस ईजिली अवेलेबल होते हैं जो ब्राउन बियर होते हैं, सो दे आर वेजिटेरियन। वेयर एज आपके जो पोलर बियर्स होते हैं दे आर कार्निवोरस बिकॉज पोलर बियर्स आर लिविंग इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस जहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होती है। तो अगर वेजिटेशन नहीं है तो ऑब्वियसली उनको अडेप्ट करना पड़ेगा लोकेशन के अकॉर्डिंग, तो वो कार्निवोरस हो जाते हैं। सो जैसा जिसको इन्वायरमेंट मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज कर लेगा, अडेप्ट कर लेगा। सो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में डायग्राम यही डिपिक्ट कर रहा है कि आपके पास सेम एंसेस्टर है सबका, राइट, बट वहाँ से क्या हुआ, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे माइग्रेट कर गए, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में चले गए, तो उनकी डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स बन गई, डिफरेंट उनके पास फंक्शंस आ गए। डार्विन फिंचेस भी इसमें आ जाएंगी। डार्विन फिंचेस में क्या था कि वो मेन आइलैंड से निकल के गैलोपेगोस आइलैंड्स में स्प्रेड हो गई थी, ठीक है, लेकिन एक ही पॉइंट से निकली थी सारी, मेन लैंड से। तो मेन लैंड से निकल के वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गैलोपेगोस आइलैंड में चली गई और वहाँ पे उनको जैसा फूड मिला उनकी बीक उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो गई। कुछ उसमें से सीड ईटर बन गए, कुछ फ्रूट ईटर बन गए, कुछ नेक्टर पे फीड करते थे, कुछ इंसेक्ट ईटर बन गए एंड कुछ वर्म्स ईटर बन गए। नेक्स्ट वी हैव एनालॉगस ऑर्गन्स। Before we discuss analogous organs, I will give you one more example of homologous organs, and that is thorns of bougainvillea. And tendrils of cucurbita. Bougainvillea is a flower, okay, and bougainvillea plant has thorns. थॉर्न्स जैसे कांटे होते हैं ना, जैसे रोज़ प्लांट पे कांटे होते हैं, वैसे जो बोगनविलिया का प्लांट होता है इस पर भी थॉर्न्स होते हैं। एंड देन टेंड्रिल्स, जैसे अगर आपने कोई लौकी होती है या कुकम्बर होता है, राइट, कुकुरबिटा फैमिली में आते हैं ये सारे, तो उनके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है वॉल पे क्लाइंब करने के लिए जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हो बेल। तो ये जो बेल होती है, जो टेंड्रिल्स होते हैं, इनका फंक्शन है टू क्लाइंब अपॉन दी सपोर्ट। ठीक है, अगर इनको कोई भी वॉल मिलेगी या कोई भी स्टिक मिल जाएगी तो ये उसके अराउंड कॉयल हो जाते हैं सो दैट दे कैन गिव सपोर्ट टू द प्लांट। वेयर एज जो थॉर्न्स होते हैं, कांटे जो हैं, इनका मेन रोल होता है टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम प्रीडेटर्स। तो दोनों का फंक्शन डिफरेंट है। थॉर्न्स आर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, टेंड्रिल्स आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द प्लांट, बट इनका जो ओरिजिन है, इनका जो सिस्टर है वो सेम है और इनका जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ ऑल्सो सेम। ठीक है, इफ़ यू लुक एट दी स्ट्रक्चर, तो ये आपकी स्टेम है, यहाँ से आपका लीफ निकलता है। अब ये जो एंगल बन रहा है स्टेम और लीफ में, इसको आप बोलते हो एक्साइल। तो थॉर्न भी यहीं से निकलता है और टेंड्रिल भी यहीं से निकलता है, एक्साइल से। तो दोनों की जो पोजीशन है दैट इज़ एक्सिलरी पोजीशन। तो दोनों का स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम, बट इनका फंक्शन डिफरेंट है। वन इज़ फॉर प्रोटेक्शन एंड द अनदर वन इज़ फॉर सपोर्ट। सो दिस इज़ ऑल्सो homologous organ. Okay, so let's start with the analogous organs next. Analogous organs will be reverse of homologous organ. Homologous organs में क्या था, डिफरेंट फंक्शन था बट सेम स्ट्रक्चर था, which suggest that they are derived from the common ancestor and they were also showing divergent evolution. But analogous structures में क्या होगा, function will be same and structure will be different. So this is the main difference. ठीक है, रिवर्स हो जाएगा। होमोलोगस में फंक्शन जो है वो
डिफरेंट है, लेकिन एनालॉगस में जो फंक्शन है वो सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। और अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है मतलब उनके एंसेस्टर्स भी सेम नहीं होंगे। ऑब्वियसली अगर एंसेस्टर सेम होते तो स्ट्रक्चर भी सेम होता, बट एनालॉगस में क्या होगा कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा। इसका मतलब ये कॉमन एंसेस्टर से नहीं आए हैं, दे आर समवट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एग्जाम्पल जो है आपका एनालॉगस ऑर्गन्स में, दैट इज़ विंग ऑफ एन इंसेक्ट एंड अ बर्ड। अब आप देखो, जो इंसेक्ट का विंग है या फिर बर्ड का विंग है, दोनों उड़ने के काम ही आ रहे हैं, बोथ आर हेल्प इन फ्लाइंग, बट देयर स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफरेंट हो गया और फंक्शन यहाँ पे सेम हो गया, दोनों फ्लाइंग के काम आ रहे हैं। तो इट इज़ सजेस्टिंग दैट दे केम फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर्स। अब आपके जो होमोलोगस ऑर्गन्स थे, दे वर शोइंग डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, राइट। बट आपके जो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हैं, दे विल शो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का अब क्या मतलब है यहाँ पे? डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर फॉर्म्स फ्रॉम अनरिलेटेड स्पीशीज ड्यू टू अडेप्टेशन टू सिमिलर इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे क्या है, मान लो ये आपका इंसेक्ट है और ये आपका बर्ड है, लेट्स सपोज। ठीक है, यहाँ पे आपका इंसेक्ट हो गया और ये आपका बर्ड हो गया। दोनों के विंग्स का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट दोनों का हैबिटेट तो सेम है, दोनों एयर में रह रहे हैं, दे बोथ हैव टू फ्लाई। सो यहाँ पे इनका फंक्शन जो है वो आके सेम हो गया। तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर थे, बट इन दोनों का इन्वायरमेंट जो है, इन दोनों का हैबिटेट जो है वो सेम है, दे बोथ हैव टू फ्लाई, राइट। तो यहाँ पे आपका सेम फंक्शन दिखाएंगे ये दोनों, बेशक वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लेके आए हैं, बट दोनों का हैबिटेट सेम होने के कारण इनके जो फंक्शंस हैं वो मिल गए आपस में, तो ये कन्वर्ज हो रहे हैं, एक जगह पे आके मिल रहे हैं। सो दैट इज़ दी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। I'll give you some more examples of the analogous organs. Like you have flippers of penguins and dolphins. They are also analogous. Then another example is sweet potato and potato tuber. दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट दोनों सेम काम कर रहे हैं। दोनों की जो रूट्स हैं दे आर स्टोरिंग दी फूड। स्वीट पोटैटो में भी फूड स्टोर हो रहा है और पोटैटो ट्यूबर्स में भी। देन eyes of cephalopod and eyes of mammals. Eyes of mammals and cephalopods. अब आइज़ का काम तो देखना ही है, तो दोनों में ये साइट का काम ही करेगा, बट दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। ओके, सो दीज आर एनालॉगस ऑर्गन्स। सो डिफरेंसेस क्या हो गए होमोलोगस एनालॉगस में? होमोलोगस में फंक्शन जो है वो डिफरेंट है, स्ट्रक्चर सेम है, एंड स्ट्रक्चर सेम है, उनका ओरिजिन सेम है, मतलब दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर्स। एंड एनालॉगस में क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है। अब स्ट्रक्चर डिफरेंट होने का मतलब है कि दे आर डिराइव्ड फ्रॉम
They are not derived from the common ancestor. They have different ancestors. होमोलोगस में क्या था? इट वॉज रिप्रेजेंटिंग डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक जगह से निकले, उनका स्ट्रक्चर तो सेम था, बट ड्यू टू डिफरेंट हैबिटेट्स, ड्यू टू डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, उनके जो फंक्शंस थे वो डिफरेंट डिफरेंट हो गए. और एनालॉगस के केस में क्या है? इट इज़ शोइंग कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, बट सेम इन्वायरमेंट और सेम हैबिटेट में सारे कन्वर्ज हो गए, जिसकी वजह से उनके फंक्शंस जो हैं वो सेम हो गए. नेक्स्ट वी हैव वेस्टिजियल ऑर्गन्स. Now, vestigial organs are, or vestigial structures are those which are non-functional in present day or modern organisms, but they were once functional in the ancestors. ठीक है, मतलब अभी जो प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये ऑर्गन्स नॉन फंक्शनल हैं, उनका कोई काम नहीं है, बट जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनमें इनका काम था. Examples like snakes and whales have vestigial hip and leg bones. अब भाई स्नेक और वेल्स में तो लेग बोन्स की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि स्नेक तो अपने मसल्स की हेल्प से क्रॉल करता है, और जो वेल है वो वैसे ही स्विम करती है, तो इनको तो लेग बोन्स की ज़रूरत ही नहीं है. बट यहाँ पे लेग बोन्स प्रेजेंट होने का क्या मतलब है? कि इनके जो एंसेस्टर्स थे वो टेरेस्ट्रियल थे, एंड वो अपनी मूवमेंट के लिए लेग्स यूज़ करते थे. ठीक है, दे वुड हैव वॉकड ऑन 4 लिम्स. तो उनके सिस्टर्स में उनका रोल था, बट अभी स्नेक्स और जो वेल्स हैं इसमें उसका कोई भी रोल नहीं है. दे हैव लॉस्ट देयर फंक्शन, राइट. एंड अनदर एग्जाम्पल इज ईयर पिन्ना. ईयर पिन्ना होता है, जैसे आपका ईयर का जो बाहर वाला पार्ट है, अगर आप अपने ईयर को पकड़ो तो बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको तुम मूव कर सकते हो, राइट, बेंड कर सकते हो, फ्लेक्सिबल होता है वो काफ़ी, उसको आप बोलते हो ईयर पिन्ना. तो दैट इज़ ऑल्सो वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमंस. हमारे में ईयर पिन्ना का कोई रोल नहीं है, बट जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, ओके, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनमें जैसे कुछ एनिमल्स थे हमारे एंसेस्टर्स, तो उनमें ईयर पिन्ना का रोल क्या था? टू कलेक्ट दी साउंड वाइब्रेशंस फ्रॉम दी सराउंडिंग. Then another example of the vestigial structure in humans is vermiform appendix. अपेंडिक्स का कोई रोल नहीं है हमारे अंदर, ठीक है, दैट इज़ वेस्टिजियल. तो अगर उसको रिमूव भी कर दें तो इट विल नॉट कॉज एनी हार्म टू आवर बॉडी. तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो हैं यही कंफर्म करते हैं कि हम जो हैं कहीं ना कहीं पुराने ऑर्गेनिज्म से बने हुए हैं, हमारे एंसेस्टर्स थे. ठीक है, तो उनमें कुछ ऑर्गन्स थे जो आजकल नॉन फंक्शनल हो चुके हैं. तो इट मीन्स वी आर derived फ्रॉम द एंसेस्टर्स. सो दैट इज़ another indirect evidence. Next we have biochemical evidences. Now biochemical evidences are based on similar biochemical reactions. Biochemical reactions are those which are taking place inside the bodies of living organisms. अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है. रेस्पिरेशन तो एनिमल्स के अंदर भी हो रही है, रेस्पिरेशन तो माइक्रोब्स के अंदर भी हो रही है. तो इट मीन्स देर आर सम प्रोसेसेस विच आर यूनिवर्सल, विच आर टेकिंग प्लेस इन ईच एंड एवरी अदर ऑर्गेनिज्म. ओके, then there are some enzymes, there are some proteins which are found in all the organisms. Example is cytochrome enzyme C, that is involved in respiration, that is present in all the organism, whether that is plant, animal or any other microbe. उसके अलावा DNA, that is also very important life molecule, right. तो DNA प्लांट्स के अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, वायरस है, बैक्टीरिया है, सब के अंदर DNA जो है दैट इज़ प्रेजेंट.
सो इट सजेस्ट कि कहीं ना कहीं हम सभी एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं, ठीक है. सो दैट इज़ द बायोकेमिकल एविडेंस. And then we have molecular evidences as well. They are not present in the PPT, okay? Molecular evidences. Molecular evidences provided by similar genes. ठीक है. If we compare 2 or 3 different species एंड देयर DNA मैचेस, ठीक है, अगर उनके DNA में कोई भी 50% या 80% कुछ भी जितना भी मैच हो रहा है, जितना भी परसेंट मैच हो रहा है, उससे हमें पता चलता है कि हमें कॉमन एंसेस्टर से आए हैं. लाइक इफ़ यू कंपेयर द DNA ऑफ ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज, then you will find the DNA of humans and chimpanzees is about 99.9% सेम. ओके, उनमें 99.9% रिजेम्बलेंस है. तो इसका मतलब कि जो ह्यूमंस और चिंपैंजीज हैं, दे मस्ट हैव इवॉल्व फ्रॉम दी कॉमन एंसेस्टर्स, राइट. अगर उनका डीएनए इतना मैच हो रहा है तो हम किसी कॉमन एंसेस्टर से आए हैं, राइट. तो जितना डीएनए मैच होगा किसी का, जितनी जीन्स मैच होंगी, उतने हम क्लोजली रिलेटेड होंगे. और जैसे जैसे आपके डीएनए मैचिंग परसेंटेज रिड्यूस होती जाएगी, मतलब हम उतने अनरिलेटेड होते जाएंगे. सो दोज आर योर मॉलिक्यूलर एविडेंसेस. सो वी आर डन विद द इनडायरेक्ट एविडेंसेस एज वेल. ठीक है, तो एविडेंसेस हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं, डायरेक्ट एज वेल इज इनडायरेक्ट. Okay, next we are going to discuss the formation of species, that how the species are formed. Okay. Now, first of all, what is species? This we have discussed number of times, like what is species. So, species is a group of closely related organisms which can interbreed. Okay, which can interbreed to produce fertile offspring. Fertile offspring. तो दैट इज़ स्पीशी, जो इंटरब्रीड कर सकते हैं और इंटरब्रीड करके उनका जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा दैट विल बी फर्टाइल. ओके, मतलब दैट कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू लुक एट दी कैट्स, तो सारी कैट्स जो होती हैं वो सेम तो नहीं होती. दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट. वी हैव नंबर ऑफ वेराइटीज़ इन कैट्स, बट they all can reproduce. Okay, they all can breed with each other to produce the fertile cat. In the same way if you look at humans, तो humans में भी बहुत सारी varieties हैं. like अगर आप across the globe देखो तो आपके पास different nations हैं, different countries हैं, और हर जगह पे आपको different varieties मिलेगी humans की, but हैं तो वो same species के ही. जैसे सारी कैट्स एक स्पीशी को बिलोंग करती हैं, इन द सेम वे ऑल ह्यूमंस बिलोंग टू द सेम स्पीशी, बट दे कैन इंटरब्रीड एंड दे कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ह्यूमन बेबी. ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई अमेरिका से है और अगर कोई इंडियन है तो वो ब्रीड नहीं कर सकते, दे कांट रिप्रोड्यूस. नो. तो अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स सेम स्पीशी का है, दे कैन इंटरब्रीड टू गिव राइज टू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. बट if we have 2 different species and they interbreed, they cannot produce fertile offspring. तो उसको हम एक स्पीशी कंसीडर नहीं कर सकते.
Example, we have horse एंड डंकी. तो हमने दोनों की ब्रीडिंग करवा दी यहाँ पे. ठीक है, दोनों की मेटिंग करवा दी. तो इससे आपका जो रिजल्ट आया दैट वाज म्यूल. अब इन्होंने रिप्रोड्यूस तो कर दिया, ऑफस्प्रिंग तो बना दिया, बट ये जो ऑफस्प्रिंग है दैट वाज स्टेराइल. स्टेराइल मीन्स इट कांट रिप्रोड्यूस, इट कांट गिव बर्थ टू बेबीज. सो आपके जो हॉर्स और डंकी हैं दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशी. उसको हम सेम स्पीशी कंसीडर ही नहीं कर सकते. बेशक उन्होंने रिप्रोड्यूस कर दिया, लेकिन रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट आया वो फर्टाइल ही नहीं है. सो स्पीशी हम उसी को बोलेंगे जो कि रिप्रोड्यूस करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग दे आपको. नाउ स्पीसिएशन क्या है? दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. ओके, and we have two pathways for the formation of new species which are depicted here in your textbook. One pathway is transformation and another one is divergence. Now the diagram is depicting the basic difference between these two. Look carefully at the transformation. Transformation में क्या हो रहा है? दोनों बटरफ्लाई हैं तो दोनों की स्पीशी तो सेम ही है, ये तो हमें पता है. ठीक है, सेम ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, बटरफ्लाई है तो सेम स्पीशी है इनकी. अब दोनों के विंग्स में आप डिफरेंस देखो. देर आर सम डिफरेंसेस इन द विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई. तो ये एक अलग वेराइटी है और ये एक अलग वेराइटी है. तो जब दो अलग वेराइटीज़ बन जाएं, ठीक है, या दो से ज़्यादा वेराइटीज़ बन जाएं, उसको हम बोल देते हैं स्पीसिएशन हो रही है. स्पीशीज़ बन रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी बन रही है. तो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी ये ओल्ड है, ओल्ड स्पीशी है, और ये न्यू स्पीशी है बटरफ्लाई की. तो ओल्ड वाली जो है दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय न्यू वन. तो आपके सराउंडिंग में धीरे धीरे चेंजेस होते रहते हैं. ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में चेंजेस होते हैं, वेरिएशंस आती हैं, नेचुरल सिलेक्शन होती है. नेचुरल सिलेक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस. ओके, सो धीरे धीरे वेरिएशंस आती हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में. एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर मैनी ईयर्स ये वेरिएशंस धीरे धीरे क्यूमुलेट होके एक न्यू स्पीशीज़ बना देती हैं. तो पुरानी वाली स्पीशी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी, डिसअपेयर हो जाएगी, एंड दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू स्पीशी. सो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. Another pathway for the formation of new species is divergence. Now what happens in divergence? This is your parent species. पेरेंट स्पीशी ने आगे रिप्रोड्यूस किया और एक तो उसने अपने जैसी स्पीशी बना दी कोई. अब मान लो जब रिप्रोडक्शन हुई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई, तो दोनों पेरेंट्स के जो जीन्स थे वो मिक्स हुए, तो उससे कुछ वेरिएशंस आ गई और यहाँ पे आपकी एक न्यू वैरायटी बन गई. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पेरेंट स्पीशी है वो तो है ही है, उसने रिप्रोड्यूस किया और आगे नई वैरायटी बना दी. तो पेरेंट तो रह ही रहा है, वो भी सर्वाइव कर रहा है. ठीक है, लेकिन उसके अलावा उसने एक नई वैरायटी भी बना दी. यहाँ पे जो पुरानी पेरेंट स्पीशी है वो एलिमिनेट नहीं हुई. दैट डजंट डिसअपेयर फ्रॉम दी सराउंडिंग और नेचर. बट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा था, जो पुरानी वाली स्पीशी थी वो डिसअपेयर हो रही थी एंड दैट वाज रिप्लेस्ड बाय न्यू वन. लेकिन डाइवर्जेंस में क्या हो रहा है, जो आपकी पेरेंट स्पीशी है दैट इज़ ऑल्सो लिविंग इन द नेचर, बट उसने एक और नई वेराइटी भी प्रोड्यूस कर दी. तो कौन सा ज़्यादा बेटर है, डाइवर्जेंस वाला, क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी. बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ट्रांसफॉर्मेशन में तो पुरानी वाली स्पीशी डिसअपेयर हो गई तो उसकी वेराइटी तो ख़त्म हो गई. बट इन डाइवर्जेंस वी हैव 2 और 3 वेराइटीज़ विल बी देयर. मतलब पुरानी वाली भी एग्जिस्ट कर रही है और कुछ नई वेराइटी भी बन गई. सो यहाँ पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है. So same is given here in the paragraph if you read it carefully. A new species gradually develops
as a result of mutation and adaptation to changing environmental conditions, and the old species is gradually replaced. This is known as transformation. An example is given. The evolution of mammoths followed this pathway. The ancestral mammoth lived approximately 2.6 million to 7 lakh years ago. Okay, it slowly evolved into the steppe mammoth. अब इसमें क्या हो रहा है देखो, सबसे पहले आपकी जो मैमोथ थी वो कौन सी थी, एंसेस्ट्रल मैमोथ थी। उसके बाद ये एलिमिनेट हो गई, डिसअपेयर हो गई। उसके बाद आ गई आपकी स्टेप मैमोथ, देन इट ऑल्सो डिसअपेयर, और उसके बाद इट इज़ रिप्लेस्ड बाय वूली मैमोथ। तो साथ साथ में वो डिसअपेयर हो रही है पुरानी वाली, और नई वाली आती जा रही है स्पीशी, राइट। सो दिस इज़ योर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट वी हैव डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे क्या है डाइवर्जेंस में, जो न्यू वैरायटी है वो कहाँ से बन रही है, फ्रॉम द पेरेंट स्पीशी, एंड पेरेंट स्पीशीज कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल hoofed Hyracotherium, which lived approximately 50 million years ago, is thought to have been the common ancestor of modern horses, tapirs and rhinoceroses. ठीक है, तो जो Hyracotherium है, it is the parent species, और वो 50 मिलियन ईयर्स एगो पहले ये हेरेकोथीरियम की स्पीशी एग्जिस्ट करती थी। फिर धीरे धीरे इससे राइनोसरॉसिस भी बनते गए, टैपरेस बनते गए, मॉडर्न हॉर्सेस बनते गए, बट हेरेकोथीरियम भी एग्जिस्ट करता था उस टाइम पे। ऐसा नहीं है कि हेरेकोथीरियम जो है वो डिसअपेयर हो गया और उसकी जगह पे राइनोसरॉस और मॉडर्न हॉर्सेस आ गए, नो, साइमल्टेनियसली वो भी साथ में ही सर्वाइव कर रहा था नेचर में। तो यहाँ पे आपकी वेराइटी ज़्यादा होती है इन केस ऑफ डाइवर्जेंस। So these are the two pathways for the formation of new species. Now how new species can be formed? ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या है, एक तो आपके पास जोग्राफिकल आइसोलेशन होनी चाहिए, दूसरा आपके पास जो है दैट इज़ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, और बायोलॉजिकल बैरियर होना चाहिए। वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम itself, जोग्राफिकल आइसोलेशन मतलब जैसे आपकी दो कैट्स हैं, मान लो एक कैट एक साइड पे रह गई, दूसरी कैट दूसरी साइड पे रह गई, और उनके बीच में कोई माउंटेन बन गया, ठीक है, या एक वाटर बॉडी, रिवर या ओशन आ गया, तो वो दोनों सेपरेट हो गई, राइट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिवर्स और माउंटेन्स। तो दैट इज़ जोग्राफिकल आइसोलेशन। अब 10-12 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, 25 साल बीत गए, वो दोनों कैट्स डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हैं, तो उन्होंने अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लिया होगा। एक कैट जो एक साइड पे रह गई थी उसने उसी हैबिटेट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लिया होगा, और दूसरी कैट जो दूसरी साइड पे रह गई थी उसने उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लिया होगा, अडेप्ट कर लिया होगा, राइट। तो दोनों में डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो ये जो दोनों में चेंज आया होगा, डिफरेंस आया होगा, दैट इज़ गोइंग टू फॉर्म न्यू स्पीशी। जो एक जगह पे कैट रह गई वो थोड़ी अलग हो जाएगी, जो दूसरी जगह पे रह गई वो थोड़ी अलग हो जाएगी, बट ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, इट टेक्स मैनी ईयर्स, ठीक है। इसको 30 साल लग सकते हैं, 50 साल लग सकते हैं, ठीक है। तो वो आगे रिप्रोड्यूस करती रहेगी, वेरिएशंस नेक्स्ट जनरेशन में पास होती रहेंगी, एंड अल्टीमेटली यू विल गेट न्यू वेराइटी। सो दैट इज़ योर जोग्राफिकल आइसोलेशन। देन यू हैव रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में क्या होगा, यू विल सी सम बिहेवियर्स कि हाउ ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे अट्रैक्ट मेल्स और फीमेल्स फॉर द रिप्रोडक्शन। लाइक अगर एक बर्ड है, तो लेट्स सपोज यू हैव अ मेल बर्ड, तो मेल बर्ड क्या करेगा, एक पर्टिकुलर साउंड निकालेगा, पर्टिकुलर सॉन्ग वो सिंग करेगा, ठीक है। तो वो जो सॉन्ग है
that will be recognized by the female bird of the same species only. कोई दूसरी स्पीशी का बर्ड उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए दो अलग अलग बर्ड्स में एक बैरियर बना रहता है कि वो बर्ड जो है वो इस तरह का सॉन्ग, इस तरह का साउंड निकाल रहा है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर बर्ड ही उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है, कोई दूसरी स्पीशी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती। सो इससे क्या होता है कि दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक रिप्रोडक्टिव बैरियर रहता है, एंड दैट कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, ठीक है। तो जब आप दो ऑर्गेनिजम्स को, दो पॉपुलेशंस को एक दूसरे से सेपरेट कर दोगे, आइदर ड्यू टू जोग्राफिकल बैरियर या रिप्रोडक्टिव बैरियर, तो जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे, ठीक है, टाइम बीतता जाएगा, तो वैसे वैसे चेंजेस आते रहेंगे उनकी बॉडी में, एंड दे विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। So here we have geographical barriers. Geographical barriers such as mountains and rivers prevent interbreeding and result in speciation because they keep populations physically separated. For example, a substantial lava flow may isolate populations. Changes in ocean levels may turn a peninsula into an island, or a few colonizers may reach a geographical separate habitat. आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्पीसिएशन विल अकर। वही आप जैसे कैट्स वाली एग्जांपल ले लो, मैंने इनको बोला कि बीच में कोई रिवर या माउंटेन आ गया तो वो दोनों सेपरेट हो गए। अब जहाँ उनकी सेपरेशन हुई है वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में पहुँच गए, तो दोनों अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई कर लेंगे, एंड आफ्टर मैनी ईयर्स उनसे न्यू स्पीशीज़ बन जाएंगी। इसमें आपकी डार्विन फिंचेस की एग्जांपल भी आ जाएंगी। डार्विन फिंचेस जो हैं दे केम फ्रॉम द मेन लैंड एंड देन दे रेडिएटेड टू डिफरेंट गैलोपेगोस आइलैंड्स, ओके। और जहाँ जहाँ पे जो फूड अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग उनकी बीक मॉडिफाई हो गई, तो हमने कह दिया कि डार्विन फिंचेस की अलग अलग स्पीशीज़ बन गई। नेक्स्ट वी हैव बायोलॉजिकल बैरियर्स, और यू कैन से रिप्रोडक्टिव बैरियर्स। ओके, इवन इफ़ द रेंजेस ऑफ द स्पीशीज़ ओवरलैप, मतलब अगर आपके पॉपुलेशन सेम एरिया के अंदर भी रह रही है तब भी उसमें रिप्रोडक्टिव बैरियर आ सकता है। पहले तो हमने जोग्राफिकल बैरियर की बात की कि वो दोनों ही डिफरेंट जगह पे रह रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे को मिल ही नहीं सकते क्योंकि बीच में माउंटेन्स या रिवर्स आ गए, तो वो दोनों सेपरेट हो गए, आइसोलेट हो गए। बट बायोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव बैरियर में क्या होगा, अगर वो सेम हैबिटेट में भी रह रहे हैं, सेम जगह पे भी रह रहे हैं, तब भी वो एक दूसरे से रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे, ठीक है, एक दूसरे से के साथ मेटिंग नहीं कर रहे, ब्रीडिंग नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ओके, द कोर्टशिप सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स। कॉर्टशिप सॉन्ग्स कौन से होते हैं बर्ड्स के, विच दे यूज टू अट्रैक्ट द मेल और फीमेल काउंटर पार्ट। Male birds use distinct calls that are recognized by other birds of the same species during their mating season. Birds that have diverged from a common ancestral species may have similar calls, but their calls are different enough from the calls of neighboring species to provide a biological barrier to the reproduction. अब इसका क्या मतलब है कि आपके जो मेल बर्ड्स हैं वो कुछ साउंड्स या कुछ कॉल्स वो यूज़ करेंगे टू अट्रैक्ट द फीमेल बर्ड्स ड्यूरिंग द मेटिंग सीजन, ठीक है। तो ये जो बर्ड्स अपना बर्ड्स की जो कॉल है, जो पर्टिकुलर सॉन्ग वो सिंग करते हैं, दे आर रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय द सेम स्पीशी ऑफ द बर्ड। अब मान लो कोई दूसरी वेराइटी है उसी बर्ड की, तो वो उस कॉल को, वो सॉन्ग को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, तो इससे क्या होता है कि दोनों के बीच में एक बैरियर बना रहता है, एंड इससे न्यू वेराइटी बनेगी, न्यू स्पीशीज़ बनेंगी। स्पाइडर्स ऑल्सो यूज बायोलॉजिकल बैरियर्स, ओके। जो फीमेल स्पाइडर्स होती हैं दे रिलीज सम केमिकल्स टू अट्रैक्ट दी मेल मेम्बर्स, बट these male members should belong to the same species, same variety। अगर कोई different variety होगी spiders की
तो वो उन फीमेल केमिकल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी. तो दैट विल ऑल्सो क्रिएट रिप्रोडक्टिव बैरियर बिटवीन द डिफरेंट वेराइटी ऑफ द स्पाइडर्स. एंड डिफरेंट वेराइटीज़ अगर एक दूसरे से सेपरेट रहेंगी, रिप्रोडक्टिव बैरियर रहेगा उनके बीच में, तो ये इनके बीच में डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे, वेरिएशंस बढ़ती जाएंगी, एंड इवेंचुअली दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. Okay, another example of the reproductive barrier is given here. टू स्पीशीज ऑफ द गाटर स्नेक. ठीक है, तो स्नेक, गाटर स्नेक की दो वेराइटीज़ हैं. ठीक है, और ये रिप्रोडक्टिव बैरियर शो करते हैं. एक जो वेराइटी है वो वाटर बॉडी के पास रहती है और दूसरी जो है वो ओपन एरिया में रहती है. दोनों सेम ही हैबिटेट में रह रहे हैं, बट एक पानी के पास रह रहा है और एक ओपन एरिया में. सो they will also not reproduce, they will also not mate with each other, so that is going to maintain a physical barrier or reproductive barrier between them. और जब तक ये बैरियर रहेगा दोनों के बीच में, वेरिएशंस आती जाएंगी, डिफरेंसेस आते जाएंगे, एंड दैट विल फॉर्म न्यू स्पीशीज. ओके, सो वी हैव डन टू मैकेनिज्म्स बाय विच स्पीशीज कैन बी फॉर्म्ड. एक तो आपका जोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया, जोग्राफिकल बैरियर इज देयर, एंड देन अदर वन इज बायोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव बैरियर. Here is the example of different varieties of the kitchlid fishes which are found in Lake Victoria and Africa. तो कोई फिश ईटर है, कोई जो प्लैंकटन ईटर है, कोई लीफ ईटर है, स्नेल ईटर है, एल्गी स्क्रैपर इज देयर, इंसेक्ट ईटर इज देयर. तो ये भी आपस में बैरियर बना के रखते हैं. फिश ईटर जो है वो जू प्लैंकटन ईटर के साथ रिप्रोड्यूस नहीं करेगी. सिमिलरली जो आपकी स्नेल ईटर है वो लीफ ईटर के साथ मेटिंग नहीं करेगी. तो अगेन यहाँ पे इनके बीच में रिप्रोडक्टिव बैरियर बना रहेगा. ठीक है, सो दे विल लीड टू द वेरिएशंस, डिफरेंट वेराइटीज विल बी फॉर्म्ड. Okay, next we have pace of evolution, the last topic of this unit. This unit is going to complete now. Okay, this is the last topic. Pace of evolution. What do you mean by pace of evolution? By pace we mean the speed, right? कि evolution किस speed से हो रही है. And there are two hypotheses for this. One is Darwin's hypothesis, that is gradualism, and the another one is punctuated equilibrium. Okay, so there are two paces. One pace is gradualism and the other one is punctuated equilibrium. Gradualism, gradually means slowly and slowly. So according to Darwin, evolution takes place on a very slow and steady rate. It continues to take place in our nature. ठीक है, कंटिन्यूटी, कोई ना कोई वेरिएशन, कोई ना कोई चेंजेस जो हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो कंटिन्यूटी में चलते रहते हैं. और जब बहुत लंबा टाइम हो जाता है तो ये जो चेंजेस होते हैं, ये जो वेरिएशंस होती हैं, दे विल एक्यूमुलेट टू गिव राइज टू न्यू स्पीशीज. तो अकॉर्डिंग टू डार्विन, evolution takes place at a very slow and steady rate. But according to punctuated equilibrium, the species remains stable for a very long time. उनके अंदर कोई चेंज नहीं होता, कोई वेरिएशंस नहीं आती बहुत लंबे टाइम के लिए. बट एकदम से क्या होता है, कोई आपके नेचर में कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हो जाता है, कोई डिस्टर्बिंग इवेंट हो जाता है, लाइक फ्लड्स आ गए या ड्रॉट आ गया या अर्थक्वेक्स आ गए. तो उससे क्या होगा, आपकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें एकदम से चेंज आ जाएगा, एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. सो दीज आर द टू मॉडल्स फॉर द पेस ऑफ एवोल्यूशन. ग्रेजुअलिज्म के अकॉर्डिंग द एवोल्यूशन इज स्लो एंड स्टीडी, but according to punctuated equilibrium, the species remains stable for a very long period of time, and suddenly there is some devastating event or disturbing event that is going to form new species. But gradualism में ऐसा कोई भी
सडन चेंज नहीं आता। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग ऐसा सडन चेंज आएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे है कि आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो आपकी स्पीशीज़ हैं, दे रिमेन स्टेबल फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम। बट ग्रेजुअलिज्म में क्या होता है, दे डोंट रिमेन स्टेबल, बट उनमें धीरे धीरे कोई ना कोई चेंज, कोई ना कोई वेरिएशन आती रहेगी। और जब उनको बहुत टाइम हो जाएगा वेरिएशंस को, दे एक्यूमुलेट, तो दे विल फॉर्म न्यू स्पीशी। ओके, दैट इज टर्म्ड एज एवोल्यूशन। तो आपका जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है दैट इज़ द पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। जो आपका ग्रेजुअलिज्म मॉडल है उसके कुछ रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं, ओके, ना ही फॉसिल रिकॉर्ड्स से मैच करते हैं। तो जो आपका मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है दैट इज़ दी पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। सॉरी। Okay, so this picture is depicting the difference between two. ग्रेजुअलिज्म में क्या हो रहा है, कोई ऐसे शार्प पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं। देखो, ये है आपकी वाई एक्सिस और यहाँ पे क्या है आपका टाइम। ठीक है, अब इस टाइम में क्या आ रहा है, कोई सडन चेंज आ रहा है एकदम से, और उसके बाद न्यू स्पीशी बन गई। फिर एकदम से सडन चेंज आया, उसके बाद एक न्यू स्पीशी बन गई। तो इसमें बहुत शार्प टर्न्स आ रहे हैं पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तब पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम यही सजेस्ट कर रहा है कि बहुत लंबे टाइम तक तो कुछ नहीं होता, लेकिन एकदम से एक टर्न आता है। ठीक है, कोई डिवास्टेटिंग इवेंट हो जाता है, तो एकदम से एक टर्न आता है जहाँ पे एक न्यू स्पीशी बन जाती है सडनली। बट ग्रेजुअलिज्म में क्या हो रहा है, धीरे 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 वेरिएशन चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो ये आपकी पेरेंट स्पीशी थी, येलो कलर की, डार्क येलो कलर की। तो धीरे धीरे वेरिएशन आती गई, धीरे धीरे कलर चेंज होता जा रहा है, होता जा रहा है, और आपको न्यू स्पीशीज़ जो हैं बीच में मिलती जा रही हैं। सो इफ़ यू लुक एट द ग्रेजुअलिज्म, तो ग्रेजुअलिज्म में क्या हो रहा है, धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। ये वाली जो बर्ड है ये इससे थोड़ी डिफरेंट है, ये वाला बर्ड इससे थोड़ा डिफरेंट है, ये वाला बर्ड इससे डिफरेंट है। तो धीरे धीरे सब में चेंजेस आ रहे हैं, कोई भी स्पीशी ऐसी नहीं है जिसमें चेंज ना आ रहा हो। सो स्पीशीज़ धीरे धीरे जो हैं वो वेरिएशंस आ रही हैं, उनमें चेंजेस आ रहे हैं। बट इफ़ यू लुक एट द पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक तो क्या हो रहा है, इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, बट सडनली क्या होता है, एक टर्न आ जाता है, यहाँ पे सडनली कोई चेंज आ जाता है, कोई डिवास्टेटिंग इवेंट हो जाता है, तो उससे एक नई स्पीशी बन जाती है अचानक से। एंड दिस इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल। सो विद दिस द चैप्टर इज़ कंप्लीट। इनफैक्ट आपकी जो यूनिट बी है दैट इज़ कंप्लीटेड। So just go through the videos, ठीक है, and if you have any doubt in any of the video or any of the topic and you want me to repeat, then do tell me, and I'm giving you some time। ठीक है, if you want a day, तो उसमें आप देख लो, नोट्स अपने कंप्लीट कर लो, and just go through the videos thoroughly, go through your textbook। एंड अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, डू आस्क मी। एंड इसमें जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, रिव्यू क्वेश्चंस आर देयर, उसको भी एक बार देखो। ठीक है, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, वैसे तो जितनी भी हमने जो भी इसमें चीज़ें पढ़ी हैं, जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं ना, क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड हैं। बट स्टिल इफ़ यू आर फाइंडिंग कि कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, ठीक है, इफ़ यू फाइंड डिफ़िकल्ट इन एनी एरिया, एनी क्वेश्चन, तो मुझे बताओ, हम उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। So that's all for today. Okay, bye bye, take care. We will start with the next unit after this.